Hi everyone, it's Abhishek Sharma from Proving CS. Now today's presentation is very important for all those students who are appearing for CS professional exam in December 2020, and as we all know that this is the last level. इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है एंड पासिंग रिजल्ट बहुत कम है, एंड दैट इज वेयर द स्टूडेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू डू द हार्ड वर्क, दे ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डू द स्मार्ट वर्क. सो अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये स्मार्ट वर्क कैसे करना है, एंड वही स्मार्ट वर्क को बताने के लिए जिससे कि आप सी एस प्रोफेशनल का एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सको इन दिसंबर 2020, प्रोविंग सी एस इज ब्रिंगिंग यू द स्ट्रैटेजी for clearing CS professional exam December 2020 in the form of ABC analysis. So before I start this entire presentation, a legal disclaimer that though because it's a last level institute is extremely unpredictable, so it is very much expected कि आप पूरा पोर्शन पढ़ें, बट पूरा पोर्शन बहुत वास्ट है, इसलिए उस पोर्शन को स्ट्रैटेजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वहाँ पे ये ABC एनालिसिस आपको ग्रेट वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेगा. नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू हैव 2 minute हार्ट टू हार्ट टॉक. Now, as you all know that Proving CS being started as exclusive educational institution for CS students with a clear vision to provide unmatched quality coaching and value-added services to all the CS students across India at all 3 levels, and I feel pride to say that we are receiving a very good confidence, very good support and appreciation from all the CS students fraternity for all the valued services such as CS Executive ABC analysis, such as CSET exam paper solving, such as CS Foundation Brahmastra series, and I convey my sincere thanks to all of you. Now, due to this unique initiative which Proving CS is taking at one place जहाँ CS student fraternity are very happy and very positive, वहीं कुछ हमारे competitors are heavily disturbed, and just to destabilize us they are doing all illicit activities such as putting defamatory comments on social media, misguiding student by planting negativity in their mind, attempting to break the dream team which Proving has created comprising of India's best CS faculties. So, मैं उन सब रेस्पेक्टफुल लोगों से यही बोलना चाहूँगा दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड वी ऑल आर टीचर्स फर्स्ट एंड रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड द कैरेक्टर एंड कैलिबर ऑफ आवर स्टूडेंट्स. We are not expected to do all this type of mudslinging activity, and our core focus should be only our students. So I want to request all those persons कि please work for the student welfare rather than wasting your time in stopping us, because Proving CS अब रुकने वाला नहीं है, and we are committed to bring quality revolution in the CS coaching industry across India. So at last, I just want to request one more time that let's keep all this negativity aside and let's work for the welfare of students only. So let's start with ABC analysis. Now, this ABC analysis being made for all 8 mandatory subjects. जो लास्ट पेपर है इलेक्टिव, दैट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दिस ABC एनालिसिस बिकॉज दैट इज प्योरली डिस्क्रिशनरी अपॉन द स्टूडेंट विश दैट विच सब्जेक्ट स्टूडेंट वांट टू ऑप्ट फॉर. सो वी हैव नॉट कंसिडर्ड दैट सब्जेक्ट except the elective last paper 9. We have considered all 8 paper here. Now we start here with paper 1, which is your governance, risk management, compliance and ethics. अब देखो, इस सब्जेक्ट को अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, विच इज बीइंग कंसिडर्ड पार्ट 1 एज गवर्नेंस फॉर 50 मार्क्स, सेकेंड इज रिस्क मैनेजमेंट फॉर 20 मार्क्स, थर्ड इज कंप्लायंसेस फॉर 20 मार्क्स, एंड फोर्थ इज एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर 10 मार्क्स. अब इस 4 पार्ट में हर स्टूडेंट को सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट पार्ट पकड़ लेना चाहिए, बिकॉज वो एक चैप्टर है बट द वेटेज ऑफ 1 चैप्टर इज 20 मार्क्स. बट अगर इस पूरे सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, लेट्स सी दिस थिंग. नाउ दिस ABC में, as I said, that the entire subject being divided into 3 category, which is category
A chapter which is most important, then category B chapter which is moderate important, and then last में category C chapter which is less important from institute examination point of view. But I am not saying कि आप category C chapters को छोड़ दो, बिल्कुल वैसा मत करना, because you are in CS professional and institute as I said is extremely unpredictable. तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ ये ABC analysis proving CS का एक attempt है, एक एफर्ट है कि वो आपको ये बता सके कि आपको पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए. पढ़ना अपने को सब कुछ है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रायोरिटाइज कैसे करना है, दिस ABC इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. नाउ सी दिस थिंग, if you see category A chapter in paper 1 it is comprising of 5 chapter. लेकिन अगर बच्चा ये 5 चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ लेता है, सो सी द वेटेज in June 2019 this 5 chapter total being asked for 83 marks, and in December 19 this 5 chapters being asked for 65 marks, जिसमें अगर आप रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर देखोगे तो वो फ्लैट 20 मार्क्स के लिए आ रहा है. मतलब सबसे पहले अपने को रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ लेना है तो अपना 20 मार्क्स सेफ हो जाएगा. उसके बाद इन 4 चैप्टर्स को पढ़ना है. अगर आपने ये 5 चैप्टर प्रॉपरली पढ़ लिया तो आपका मोर देन 60 मार्क्स का पेपर आपका वहां पे सिक्योर हो जाता है. देन इफ वी सी कैटेगरी बी चैप्टर इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 6 चैप्टर, और अगर ये 6 चैप्टर बच्चा प्रॉपरली पढ़ लेता है तो in December 19 this 6 chapter being asked for 43 marks, and in June 19 this 6 chapter being asked for 41 marks. अच्छा, now some of you may be thinking कि why we have considered only last 2 attempt, because जो नया पोर्शन आया है CS प्रोफेशनल का उसके अभी तक सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट एग्जाम हुए हैं, which is June 19 and December 19. अब अगर स्टूडेंट्स इस कैटेगरी ए और कैटेगरी बी चैप्टर्स को ध्यान से देखेंगे तो कैटेगरी ए में 5 चैप्टर्स हैं, कैटेगरी बी में 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन टोटल 11 चैप्टर्स का वेटेज इज गोइंग मोर देन 100 मार्क्स. तो सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग सर ये 100 से ऊपर कैसे चला गया. अंडरस्टैंड, प्रूविंग सीएस ने आपके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एबीसी एनालिसिस बना लिया है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 100 मार्क्स कंसीडर नहीं किया है, वी हैव कंसीडर्ड दोज क्वेश्चंस आल्सो जो चॉइस में आता है. मतलब आपका पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2A होगा, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, बट ये एबीसी बनाया गया है कंसिडरिंग दोज ऑप्शंस आल्सो. ओके, नाउ if you see category C chapter, as you can see that number of chapters are more in category C, लेकिन उनका weightage is relatively less as compared to category A chapter and category B chapter. तो category C में total 7 chapters हैं, और ये 7 chapters जून 19 में 11 मार्क्स के लिए आए थे एंड दिसंबर 19 में 27 मार्क्स के लिए आया था, जिसमें से आपका जो वेटेज है वो कम हो जाता है. एंड देयर आर फ्यू चैप्टर्स जो अभी तक किसी एक रन में पूछा भी नहीं गया. फॉर एग्जांपल इन बोर्ड इफेक्टिवनेस इन जून 19 दैट चैप्टर हैज नॉट बीन आस्क्ड फॉर अ सिंगल मार्क, एंड इन दिसंबर 19 अगेन दैट चैप्टर बीइंग आस्क्ड ओनली फॉर 3 मार्क्स. Same way, ethics and business has not been asked for single marks in June 19 and being asked only for 2 marks in December 19. इसलिए इन चैप्टर्स को अपने को पढ़ना है, लेकिन लास्ट में पढ़ना है. पहले कौन सा पढ़ना है? रिस्क मैनेजमेंट. सो अगर मैं इस पूरे सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस को समराइज करूं तो कैटेगरी ए इज हैविंग 5 चैप्टर, category B is having 6 chapter and category C is having 7 chapter. लेकिन पहले कौन सा पढ़ना है? First we have to study category A chapter, then we have to study category B chapter, और last में category C करना है, because category A और B ही आपका 100 मार्क्स से ऊपर का पेपर सिक्योर कर देता है. I hope it's clear. Now let's move to another very important subject which is called taxation, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट गिरता है, और इस सब्जेक्ट को कैसे प्रॉपरली प्लान करना है और स्ट्रैटेजाइज करना है अब ये देखिए. Now this entire taxation subject being divided into 2 parts. One is your indirect taxation which is comprising of GST for 60 marks and custom for 10 marks, and this is for 70 marks indirect taxation है. Direct taxation and international taxation is total is of 30 मार्क्स. अब देखो कैसे पढ़ना चाहिए. फर्स्ट
we are going to have ABC separately for indirect taxation and ABC separately for direct taxation, जिससे कि बच्चे को एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिल सके। एंड यही प्रोविंग सीएस का मोटो है कि इंडिया के हर सीएस बच्चे को एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करना। अब देखो, सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बच्चे को कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए? 4 चैप्टर्स। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, रिमेंबर दिस 4 चैप्टर्स वेरी प्रॉपरली, स्टडी दिस 4 चैप्टर, क्योंकि ये 4 चैप्टर आपका जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें से, एंड विद चॉइस इट बिकेम्स मोर देन 70 मार्क्स, इसमें से ये 4 चैप्टर ही मेजॉरिटी मार्क्स कवर कर लेते हैं, विच मीन्स दैट इफ यू सी सप्लाई चैप्टर, now supply chapter for June 19 being asked for 19 marks and for December 19 being asked for 35 marks, which means that the average weightage of this chapter alone is 27 marks। मतलब 70 मार्क्स के पेपर में 27 मार्क्स तो सिर्फ सप्लाई चैप्टर से आ रहा है। सेम वे इफ यू सी द प्रोसीजर कंप्लायंस अंडर जीएसटी, if you talk about input tax credit and if you talk about assessment, audit, demand and recovery, ये जो टोटल 4 चैप्टर्स हैं इनका क्यूमुलेटिव वेटेज जो है in June 19 being asked for 71 marks and in December 19 being asked for 74 marks। मतलब अगर दोनों अटेम्प्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाए तो दोनों ही अटेम्प्ट में ये 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। अब देखो, अब कैटेगरी बी चैप्टर में कौन से चैप्टर हैं? दे आर कंप्राइजिंग ऑफ 2 चैप्टर, वन इज इंस्पेक्शन एंड सेकेंड इज वैल्यूएशन। इन 2 चैप्टर का क्यूमुलेटिव वेटेज in June 19 being asked for 14 marks and in December 19 being asked only for 6 marks. Now see this thing, if you see category C chapter, as you can see कि number of chapters are very high, it is comprising of 10 chapter, लेकिन ये 10 chapters together कितने marks का weightage hold कर रहे हैं? If you see this 10 chapter being asked only for 5 marks in June 19 and only for 10 मार्क्स इन दिसंबर 19, और अगर आप इन चैप्टर्स को ध्यान से देखोगे, 4th चैप्टर ऑनवर्ड देखेंगे तो ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन, इंडस्ट्री सेक्टर स्पेसिफिक, इन सब चैप्टर्स का तो खाता ही नहीं खुला है। मतलब इन चैप्टर से क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। इफ यू सी, दोनों ही अटेम्प्ट में एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ? आई एम नॉट सेइंग कि आप इन चैप्टर्स को छोड़ दो, डेफिनेटली नहीं छोड़ना है, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल है, यू कैन नॉट टेक चांस। बट हैविंग सेड दैट, आपको पहले कौन से 5 चैप्टर पढ़ने हैं? विद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज सप्लाई। क्लियर? Now if we move towards direct taxation, now direct taxation and international taxation together is of 30 marks। अब इस 30 मार्क्स को कैसे अपने को प्लान करना है ये सीखिए। देखो, डायरेक्ट टैक्सेशन में सबसे पहले ना अपने को 2 चैप्टर्स पे अच्छा ग्रिप पकड़ लेना है, दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसका इंडिविजुअल चैप्टर का जो एवरेज वेटेज है वो है 18.5 मार्क्स। इसका मतलब आउट ऑफ 30 मार्क्स पेपर 18.5 मार्क्स तो सिर्फ ये इकलौते चैप्टर से आ रहे हैं। Second, if you see taxation of companies, LLP and non-resident, that individual weightage, average weightage of this chapter is 13 marks। इसका मतलब if I see direct taxation के पेपर को and these 2 chapters in specific, the cumulative weightage of these 2 chapters in June 19 exam was 39 marks and in December 19 was for 24 marks। Now see this thing, if you see category B chapter में सिर्फ एक ही चैप्टर है which is income tax implication। Now see this thing, ये चैप्टर जून 19 में एक भी मार्क्स का नहीं आया था, तो क्या इसका वेटेज खत्म हो जाता है? नो। सी, कई बार सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इज अ बैड प्लेयर। सी द नेक्स्ट अटेम्प्ट, इमीडिएटली 10 मार्क्स का चैप्टर आया है, इसका मतलब आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो। बट पहले कौन से 2 चैप्टर पढ़ने हैं? वो 2 चैप्टर जो कैटेगरी ए में है। एंड देन once you are done with these 3 chapter, then there are 3 chapter which is forming part of category C chapter, और इन 3 chapters का cumulative weightage जो था in June 19 was 6 marks and in December 19 being asked for 11 marks। इसका मतलब अगर मैं पूरे ABC एनालिसिस को समराइज करूं फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन एज वेल एज फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन,
तो कुछ समरी इस तरीके से दिखेगी कि एबीसी एनालिसिस फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कैटेगरी ए में 4 चैप्टर्स हैं, कैटेगरी बी में 2 चैप्टर्स हैं एंड कैटेगरी सी में बिग नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं विच इज 10 चैप्टर्स। सेम वे अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेशन देखूं तो कैटेगरी ए में 2 चैप्टर्स हैं, कैटेगरी बी में एक ही चैप्टर है और कैटेगरी सी में 3 चैप्टर्स हैं। I hope now you will find bit easy to manage taxation subject which is a very voluminous subject. Now we move to a third paper which is called drafting. Understand student, ये जो subject है ये pure corporate lawyers का काम है जो कि फ्यूचर में आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, बिकॉज एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू आर गोइंग टू बी कॉर्पोरेट लॉयर एंड हैव टू डू अ लॉट ऑफ ड्राफ्टिंग वाइल प्रैक्टिसिंग एज वेल एज वाइल इन एम्प्लॉयमेंट। तो इस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, सी दिस थिंग। इस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स में पहले आपको 3 चैप्टर प्रॉपरली पकड़ लेने हैं, विच इज योर प्लीडिंग चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इफ यू कैन सी the average weightage of pleading chapter individually is of 25 marks. Then secretarial practice, the average weightage of this chapter is 23 marks. And then drafting and convincing, which is the first chapter in terms of drafting. मतलब ये आपके मॉड्यूल में 4th चैप्टर है, लेकिन जहाँ पे आपकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग चालू होती है वो ये फर्स्ट चैप्टर है। द एवरेज वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 17 मार्क्स। मतलब अगर एक स्टूडेंट इन 3 चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ ले तो जून 19 में these 3 chapters together being asked for 62 marks, and in December 19 these 3 chapters together being asked for 68 marks. इसका मतलब more than 60% of your exam paper being covered only from these 3 chapters. Now if you see category B chapter of subject called drafting, in that you are comprising of 4 chapter. अब देखो ये 4 chapters जो हैं, इन 4 चैप्टर्स का क्यूमुलेटिव वेटेज जून 19 में 47 मार्क्स था एंड दिसंबर 19 में 44 मार्क्स था। मतलब मोर देन 40% ऑफ द एग्जाम पेपर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज 4 चैप्टर। इसका मतलब अगर एक स्टूडेंट प्रॉपरली ड्राफ्टिंग को एनालाइज करना चाहे इस सब्जेक्ट को, तो कैटेगरी ए में 3 चैप्टर्स हैं, कैटेगरी बी में 4 चैप्टर्स हैं। मतलब ए और बी कैटेगरी में टोटल मिला के 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन 7 चैप्टर्स का क्यूमुलेटिव वेटेज इज गोइंग मोर देन 100 मार्क्स। नाउ इफ यू सी कैटेगरी सी चैप्टर, नाउ इन कैटेगरी सी में अगेन 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन कैटेगरी का वेटेज, इन 4 चैप्टर्स का क्यूमुलेटिव वेटेज इज ऑन अ बिट लोअर साइड कंपेयर टू कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी चैप्टर। सो अगर हम लोग एबीसी एनालिसिस ऑफ ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट को पूरा अगर समराइज करना चाहें तो कैटेगरी ए में 3 चैप्टर्स हैं, कैटेगरी बी में 4 चैप्टर्स हैं एंड कैटेगरी सी में भी 4 चैप्टर्स हैं। लेकिन सबसे पहले कैटेगरी ए पढ़ना, क्योंकि आपने कैटेगरी ए पढ़ लिया तो आपका 60 मार्क्स से ऊपर का पेपर सिक्योर हो जाएगा। देन गो टू कैटेगरी बी, मतलब प्लीडिंग चैप्टर is going to be a bible for all of you because individually वो इकलौता चैप्टर 25 मार्क्स के आसपास का वेटेज होल्ड करता है। क्लियर? Now let's move to another subject which is your paper 4, which is comprising of your secretarial audit, compliance management and due diligence। अब अगर आप इस सब्जेक्ट को इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने इस पूरे सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। One is compliance management for 40 marks and second is secretarial audit and due diligence for 60 marks। अब देखो कैसे इसको मैनेज करना है। पहले हम लोग समझेंगे कंप्लायंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को। कंप्लायंस मैनेजमेंट में सबसे पहले कैटेगरी 1 चैप्टर, देखो ध्यान से 7 चैप्टर्स हैं इन कंप्लायंस मैनेजमेंट पार्ट। इन 7 में से सबसे पहले तो आप एक चैप्टर, सिंगल चैप्टर विच इज कॉल्ड सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इस चैप्टर को आप पकड़ लो। एक इकलौता चैप्टर है जिसका इंडिविजुअल वेटेज इज मोर देन 12 मार्क्स, 12.5 मार्क्स है। अच्छा अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इन दिस सब्जेक्ट दो इंस्टीट्यूट सेज कि 40 और 60 का रेशो है, लेकिन ये परसेंटेज भी कई बार चेंज होता है। ओके, नाउ इन द कैटेगरी बी चैप्टर they are comprising of 4 chapter,
एंड अगर मैं इन 4 चैप्टर्स को जून 19 एग्जाम में अगर देखूं तो क्यूमुलेटिव द 4 चैप्टर being asked for 35 marks and in December 19 being asked for 40 marks. इसका मतलब सबसे पहले कैटेगरी ए का फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़ लो, जब वो फर्स्ट चैप्टर हो जाए तो फिर ये 4 चैप्टर्स पढ़ो. टोटल 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन 5 चैप्टर आपका मेजॉरिटी पोर्शन कवर कर लेता है इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. And then if you see category C chapter, it is comprising only of 2 chapter जिसमें search and documentation है. These 2 chapters taken together being asked for 15 marks in June 19 and being asked only for 5 marks in December 19. Clear? But again understand students, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी ऑडिट काफ़ी हद तक रिलेट होते हैं सब्जेक्ट, तो मार्किंग थोड़ा ऊपर नीचे होता है. एंड दैट इज व्हाट द सीएस प्रोफेशनल इज ऑल अबाउट. द ब्यूटी ऑफ सीएस प्रोफेशनल इज दैट इट इज एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेक्रेटरी ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, इसमें पहले 3 चैप्टर्स को पकड़ लेना. फर्स्ट ड्यू डिलिजेंस विच इज कंप्राइजिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया, ड्यू डिलिजेंस 1, ड्यू डिलिजेंस 2. उसमें पहले ड्यू डिलिजेंस 1 पढ़ लीजिए. कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अदर ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें जून 19 में these 3 chapters taken together being asked for 39 marks and in December 19 में these 3 chapters taken together being asked for 34 marks, जिसमें ड्यू डिलिजेंस सब्जेक्ट चैप्टर जो है वो इंडिविजुअली 14 मार्क्स का एवरेज वेटेज होल्ड करता है. मतलब सबसे पहले, और बहुत सिंपल चैप्टर है ट्रस्ट मी, तो सबसे पहले आज ये पूरा ABC देखने के बाद इफ यू आर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट, सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस चैप्टर 1 पढ़ लेना. मतलब इस ABC की वजह से आपको फायदा ये होने वाला है कि आप जब भी वो सब्जेक्ट उठाएंगे, सबसे पहले कैटेगरी A चैप्टर्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, फिर कैटेगरी B पे जाओ एंड देन कैटेगरी C पे. क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स category B chapter of this part, which is secretary audit and due diligence, and it is comprising only of 3 chapters. See the 3 chapter which it, अगर मैं एवरेज वेटेज देखूं इन 3 चैप्टर्स का, क्यूमुलेटिव जो मार्क्स इंस्टीट्यूट ने पूछा है इन जून 19 being asked for 28 marks and in December 19 being asked for 16 marks. मतलब अगर मैं इन 2 A और B कैटेगरी को भी अगर प्रॉपरली पढ़ लेता है कोई भी स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट इज कवरिंग ऑलमोस्ट 50 marks and above. Now if you see category C chapter, the number of chapter in category C is very high बट वेटेज कम है. मतलब अगर इस पूरे सब्जेक्ट को स्ट्रेटजाइज किया जाए, समराइज किया जाए, तो कैटेगरी ए इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 चैप्टर. अच्छा, इसमें 4 चैप्टर में 1 चैप्टर इज ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड 3 चैप्टर इज फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस. ये समरी पूरे सब्जेक्ट की दी है, इसको अलग अलग नहीं किया एज व्हाट वी हैव डन इन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बिकॉज वहाँ सब्जेक्ट अलग होता है. ये सब्जेक्ट काफ़ी हद तक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है. सो कैटेगरी ए इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 चैप्टर, कैटेगरी बी इज कंप्राइजिंग ऑफ 7 चैप्टर एंड कैटेगरी सी इज कंप्राइजिंग ऑफ 9 चैप्टर्स. क्लियर? आई होप दिस एंटायर थिंग इज क्लियर. ध्यान से देखो, अगर आप इसमें कैटेगरी सी को देखोगे इन सेक्रेटरी ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस में, तो उसमें 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनका अभी तक खाता ही नहीं खुला है. पढ़ना है अपने को, लेकिन लास्ट में पढ़ना है. क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. ट्रस्ट मी, एज आई सेड कि ड्राफ्टिंग आपको पूरे करियर में एज अ CS काम आने वाला है. सेम तरीके से ये सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एंड अगेन ये सब्जेक्ट को अगर आप इंस्टीट्यूट के पॉइंट से देखोगे, तो इंस्टीट्यूट ने इस पूरे सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. Part 1 is comprising of corporate restructuring, which is of 50 marks, and part 2 again is comprising of insolvency, liquidation and winding up, which is again for 50 marks. ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ये जो part 2 है ना, अगर आपने इलेक्टिव में IBC लिया होगा तो वहाँ पे भी ये पार्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट हो जाता है. अब देखो, अगर हम लोग पार्ट 1 को देखते हैं, तो पार्ट 1 में कैटेगरी ए में फर्स्ट 1 चैप्टर है, ओनली 1 चैप्टर विच इज टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, और ये इकलौता चैप्टर लास्ट 2 अटेम्प्ट से बैक टू बैक 10 मार्क्स के लिए आता है. मतलब
50 मार्क्स में से 10 मार्क्स अकेले इस चैप्टर से आ रहा है, इसका मतलब 1/5 पेपर बन गया, यहाँ से 20% हो गया, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी गलती से भी छोड़ नहीं सकते। देन इफ यू सी पार्ट बी of this particular part of the subject called corporate restructuring, it is comprising of 6 chapter. अब देखो, अगर आप corporate restructuring subject का part 1 देखोगे which is corporate restructuring, उसमें merger chapter को बहुत सारे parts में divide किया है। तो जब एक बच्चा पूरा merger complete करता है तो उसके काफ़ी chapters complete हो जाते हैं। बट अगर हम उसको ABC के फॉर्म में स्ट्रक्चर करना चाहें तो कैटेगरी बी इज कंप्राइजिंग ऑफ 6 चैप्टर, और इसमें वैल्यूएशन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रॉपरली आता है तो ये जो वैल्यूएशन का जिसका एवरेज वेटेज 7.5 मार्क्स है, आप आराम से सिक्योर कर सकते हो। देन इफ यू सी कैटेगरी सी चैप्टर ऑफ फर्स्ट पार्ट, इट इज अगेन कंप्राइजिंग ऑफ 6 चैप्टर्स, और ये 6 चैप्टर्स का क्यूमुलेटिव मार्क्स अगर आप जून 19 में देखोगे तो इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, एंड इन दिसंबर 19 में इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 24 मार्क्स। देखो ध्यान से देखो, 5 से 24, मतलब आप इन चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन हाँ पहले अपने को कैटेगरी ए पकड़ लेना है, फिर कैटेगरी बी, बाद में कैटेगरी सी। मतलब अगर हम लोग सिर्फ सीआर सब्जेक्ट के पार्ट 1 की ABC एनालिसिस को समराइज करें तो कैटेगरी A चैप्टर इज हैविंग ओनली 1 चैप्टर, कैटेगरी B इज कंप्राइजिंग ऑफ 6 चैप्टर, एंड कैटेगरी C इज कंप्राइजिंग ऑफ 6 चैप्टर। लेकिन पहले कौन सा 6 पढ़ना है? फर्स्ट वी हैव टू डू द 6 चैप्टर्स ऑफ कैटेगरी B एंड देन विल मूव टू कैटेगरी C चैप्टर। ओके, now we move towards part B of this subject, which is nothing but insolvency, liquidation and winding up, जिसमें अगर हम लोग कैटेगरी ए चैप्टर देखते हैं तो 2 ही चैप्टर हैं। स्टूडेंट ध्यान से समझो, ये जो पार्ट है इसको बहुत प्रॉपरली पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको पेपर 9 में भी हेल्प करेगा अगर आपने IBC सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है एज इलेक्टिव। अब देखो, इसमें कैटेगरी ए में सिर्फ 2 चैप्टर हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों चैप्टर फ्लैट 18 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं इन लास्ट 2 अटेम्प्ट, वेयर बाय लिक्विडेशन ऑन और आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशन प्लान बीइंग आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स in both the attempts, and preparation and approval of resolution plan being asked for 8 marks in both the attempts. Then if we see category B chapter of this part, it is comprising of 4 chapter, और ये 4 चैप्टर का जो क्यूमुलेटिव वेटेज है वो 24 मार्क्स है इन बोथ द अटेम्प्ट। दो इनर वेटेज थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन क्यूमुलेटिव दिस 4 चैप्टर बीइंग आस्क्ड फॉर 24 मार्क्स। मतलब अगर एक बच्चा ये 2 पार्ट को कंप्लीट कर ले तो ऑलमोस्ट 42 मार्क्स का पेपर उस बच्चे का सेफ हो जाता है। And then if we go to category C chapter, as you can see the number of chapters list is very high, but cumulative weightage is same in both the attempt, which is of 23 marks. But for 23 marks student को 7 chapters पढ़ने पड़ रहे हैं, vis-a-vis for 18 मार्क्स स्टूडेंट को सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। तो पहले कैटेगरी ए पकड़ लो विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 चैप्टर, फिर कैटेगरी बी पकड़ो विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 चैप्टर, एंड देन कैटेगरी सी विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 7 चैप्टर्स। आई होप ये पूरा सब्जेक्ट आपको समझा है कि आपको इस पूरे सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रैटेजाइज और प्लान करना है। Now let's move to paper 6, which is your resolution of corporate dispute, non-compliance and remedies. Now student please understand, इस पूरे सब्जेक्ट में 7 चैप्टर्स ही हैं। मतलब हर एक चैप्टर का अगर मैं एवरेज भी निकालूं तो मोर देन 14 मार्क्स का हर चैप्टर बन जाता है। छोड़ना अपने को एक भी चैप्टर नहीं है, लेकिन कैसे प्लान करना है, लेट्स सी दिस थिंग। इस सब्जेक्ट में 2 चैप्टर जो हैं उसको बहुत प्रॉपरली पकड़ लीजिए। पहला रेगुलेटरी एक्शन, इस चैप्टर का इंडिविजुअल वेटेज जो है इट इज 27 मार्क्स, एंड देन फ्रॉड अडर कंपनीज एट एन IPC, इस चैप्टर का इंडिविजुअल वेटेज 21 मार्क्स है। मतलब अगर एक स्टूडेंट इन 2 चैप्टर को पढ़ लेता है तो उसका 50 मार्क्स क्यूमुलेटिवली बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर जून 19 एंड 46 मार्क्स बीइंग प्रिपेयर्ड इन दिसंबर 19 हो गया था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये 2 चैप्टर को बहुत ही प्रॉपरली अपने को पढ़ना है। ये समझा? अब देखिए,
Now if I see category B chapter of this subject, there is no category C because हर chapter का individual weightage जो है वो more than 14 marks हैं, तो remaining जो भी 5 chapters हैं ये cumulatively forming part of category B chapter. And trust me, in your CS professional course, this subject is extremely scoring. क्योंकि 2 चैप्टर प्रॉपरली पढ़ लिया बच्चे ने तो उसका ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का पेपर सिक्योर हो जाता है. सो if I have to summarize this entire subject in the form of ABC analysis, category A is having 2 chapter and category B is having 5 chapter. Total इस subject में 7 chapters हैं. समझा? Okay. So now let's start with paper 7, which is corporate funding and listing in stock exchange. अब इस सब्जेक्ट को इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, विच इज़ कॉर्पोरेट फंडिंग फॉर 60 मार्क्स एंड लिस्टिंग इज़ फॉर 40 मार्क्स. अब देखो यहाँ पे अगर इस सब्जेक्ट की ABC एनालिसिस देखा जाए तो इसमें ना एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना. अगर आप मॉड्यूल देखोगे इस सब्जेक्ट का तो उसमें जो लास्ट 2 चैप्टर हैं उसमें नीचे ना चैप्टर के जो फर्स्ट पेज पे आओगे उसमें नीचे लिखा है कि दिस चैप्टर बीइंग गिवन ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस. इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि इंस्टीट्यूट उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा. इनफैक्ट इफ यू सी द लास्ट 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से पूछे गए हैं. So if you see the first most important chapter in this subject is listing, which is nothing but LODR, जिसका इंडिविजुअल वेटेज इस चैप्टर का मोर देन 17 मार्क्स है. मतलब जून 19 में दिस चैप्टर बीइंग आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स एंड दिसंबर 19 में दिस चैप्टर बीइंग आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स. इसके बाद जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज़ योर डेट फंडिंग फंड बेस, जिसका इंडिविजुअल वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 15 मार्क्स. Then there is a chapter called international listing जहाँ पे overseas exchanges के बारे में उनके rules के बारे में डिस्कस किया जाता है. And this chapter individually being weightage of 15 marks. And then there is a chapter called preparing a company for IPO, which is the last 2 chapter का part है. This chapter individual weightage is 15 marks. Total in 4 chapters का जो cumulative weightage है in June 19 exam being asked for 70 marks. एंड दिसंबर 19 में दिस चैप्टर बीइंग दिस 4 चैप्टर बीइंग आस्क्ड फॉर 55 मार्क्स. मतलब अगर ये 4 चैप्टर बच्चे ने पढ़ लिए तो मोर देन 50 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाता है. देन इफ वी सी कैटेगरी बी चैप्टर, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 5 चैप्टर और इन 5 चैप्टर का जो एवरेज वेटेज है लास्ट 2 अटेम्प्ट में वो ऑलमोस्ट इक्वली है, 47 एंड 46 मार्क्स रेस्पेक्टिवली इन जून 19 एंड दिसंबर 19. एंड देन अच्छा इसमें एक चैप्टर विच इज़ फॉरेन फंडिंग जहाँ पे ECB एंड ऑल दैट हैं. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल ही मत छोड़िएगा बिकॉज द एवरेज वेटेज ऑफ दैट चैप्टर इज अगेन मोर देन 10 मार्क्स. अनदर थिंग अदर बोरोइंग टूल करके एक चैप्टर है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी हद तक रिलेटेड है जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था. इस चैप्टर का भी इंडिविजुअल वेटेज मोर देन 10 मार्क्स है. मतलब इन चैप्टर्स को 4 चैप्टर ऑफ कैटेगरी ए एंड फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ कैटेगरी बी ये टोटल मोर देन 67 मार्क्स के आसपास का पेपर बना देते हैं. देन इफ वी गो to category C chapter, again good number of chapters are there in category C chapter, but जो total weightage है वो less है. मतलब category C में 7 chapters हैं but ये 7 chapters taken together being asked only for 18 marks in June 19 and being asked for 34 marks in December 19. अब देखो स्टूडेंट ध्यान समझो, 18 से सीधा 34 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है. इसका मतलब आप ये कैटेगरी सी चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते लेकिन पहले कैटेगरी ए पढ़ना. Clear? So just summarize ABC analysis है of this particular subject. Now इसमें category A is comprising of 4 chapter, category B is comprising of 5 chapter and category C is comprising of 7 chapters. समझा? Now if we move to paper 8 which is a multidisciplinary case study. Now ये open book exam है लेकिन तो भी आपको इसको properly समझना है कैसे पढ़ना चाहिए. सी दिस थिंग. ना इसमें
कैटेगरी ए में 2 चैप्टर्स हैं, उन 2 चैप्टर को अगर बच्चा प्रॉपरली पढ़ ले तो मोर देन 55% पेपर इन 2 चैप्टर्स आता है, जिसमें बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो लास्ट 2 अटेम्प्ट से 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है। मतलब जो पहला क्वेश्चन बनता है, जो एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, वो इसी चैप्टर से आ रही है। इसलिए सबसे पहले इस चैप्टर की केस स्टडी को पढ़ लो एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर आप लास्ट 2 अटेम्प्ट के इस सब्जेक्ट को देखोगे तो जो केस स्टडी पूछी भी गए हैं वो मॉड्यूल की ही केस स्टडी है। इसका मतलब आपको इंस्टीट्यूट इतना लेवरेज दे रहा है कि अगर आपने मॉड्यूल प्रॉपर्ली पढ़ा है, मॉड्यूल की केस स्टडीज को प्रॉपर्ली समझा है, तो आप ये सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। देन if you go to category B chapter of this particular subject, again it is comprising of 2 chapters only, जिसका cumulative weightage 18 marks है। मतलब अगर ये 4 चैप्टर बच्चा पढ़ ले तो ऑलमोस्ट 76 मार्क्स का पेपर बच्चे का सिक्योर हो जाता है। एंड देन if we go to category C chapter, now category C में 4 chapters हैं, लेकिन इनका cumulative weightage is not that high। मतलब total 8 chapters हैं। इन 8 chapters में से पहले वो 4 chapters पढ़ो जो category A और B के हैं, फिर वो 4 chapters पढ़ो जो category C के हैं। तो if I have to summarize दिस एंटायर सब्जेक्ट को अगर समराइज किया जाए तो कैटेगरी ए में 2 चैप्टर हैं, कैटेगरी बी में 2 चैप्टर हैं और कैटेगरी सी में 4 चैप्टर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको समझा होगा कि आपको CS प्रोफेशनल को कैसे प्लान करना है, हार्ड वर्क के संग स्मार्ट वर्क कैसे डालना है, जिससे कि नॉट ओनली आप पास हो बट आप ऑल इंडिया रैंक भी लाओ। एंड विद दिस the entire team Provings wish you a very good luck for your exam। And just one more announcement that we are coming out with marathon lecture series for CS professional from this week onwards, and we are going to put all important chapters के revision lectures also, so please subscribe for our YouTube channel। And at last, on behalf of entire team Provings, मेरे को ध्यान से सुनने के लिए thank you so much।